Welcome students. This is lecture number 2 of this series of thermal physics for 4th semester. In today's lecture, we are going to discuss what is thermal equilibrium. After that, we will discuss the zeroth law of thermodynamics, and using the zeroth law of thermodynamics, we will introduce the concept of temperature. So let's start this video. Let us start first with the thermal equilibrium. We have two systems we have two systems, system A and system B, separated by a diathermal wall. What is diathermal wall? It is that wall that allows the exchange of energy and matter, that allows the exchange of heat between two systems. So what will happen here? The two systems will start exchanging the energy, will start exchanging the heat until the two systems will come to an equilibrium position. ये तब तक आपस में हीट एक्सचेंज करेंगे, अब तब तक आपस में एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे, तब तक आपस में मैटर को एक्सचेंज करेंगे, जब तक कि ये दोनों सिस्टम्स एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना आ जाए, जब तक इन दोनों सिस्टम्स की स्टेट सेम ना हो जाए, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती रहेगी. That equilibrium is known as thermal equilibrium. So एग्जाम में क्या लिख के आएंगे वो देख लेते हैं. ये तो एक एग्जाम्पल थी. Let's move with what we have to write in the examination. Thermal equilibrium is the state achieved by two or more systems, characterized by restricted values of coordinates of the systems. After they have been in communication with each other through a diathermal wall. डायथर्मल वॉल कौन सी वॉल होती है? जो एलो करता है, एलोज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. और हीट. अब नीचे छोटी सी एक डायग्राम बना के आएंगे. ये क्या है? ये डायथर्मल वॉल है. ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है. मान के चल देते हैं इसमें कुछ प्रेजेंट है, कोई गैस इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी कोई गैस प्रेजेंट है. तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? साइड में लिखेंगे सिस्टम ए is in thermal equilibrium with system B. या इसको हम कैसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, सिस्टम A is in thermal equilibrium with system B.
सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Let's first write the statement of this. Let's first write the statement of this law. The zeroth law thermodynamics states that if two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they are in thermal equilibrium with each other. So this is the statement of zeroth law of thermodynamics. If two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they are in thermal equilibrium with each other. ये स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है कि अगर दो सिस्टम्स अगर एक तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, देन जो दो सिस्टम्स है ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. तो नेक्स्ट जो डायग्राम हम बना के आएंगे इससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा. This is an adiabatic wall. एडियाबैटिक वॉल कौन सी वॉल होती है जो प्रिवेंट करे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर. लेट वी हैव टू सिस्टम्स separated by diathermal wall. Sorry, again separated by the adiabatic wall. Well, we have system A, we have system B, and again we have a third system. That is separated with these two systems through a diathermal wall. ये दो सिस्टम ए एंड सिस्टम बी सेपरेट हैं एडियाबेटिक वॉल के थ्रू, बट सिस्टम ए और ये दो सिस्टम और सिस्टम सी, ये सिस्टम सी है हमारे पास, ये सेपरेट हैं डायथर्मल वॉल के थ्रू. अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, मैं एनर्जी ऑफ हीट होगी तब तक होगी जब तक दोनों ये तीनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम पे ना आए. तो मैं क्या कह सकता हूँ इधर, यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, सिस्टम C is in thermal equilibrium with A and system C is also in thermal equilibrium with B. Then can we say system A and B are also in thermal equilibrium? Yes, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अगर सिस्टम C थर्मल इक्विलिब्रियम विद A है और सिस्टम C थर्मल इक्विलिब्रियम विद B भी है, तो क्या ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे. ये तो हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. If the system
A is in thermal equilibrium with another system C, and that system C is separately in thermal equilibrium with another system B, then by zeroth law both the systems A and B will also be in thermal equilibrium with each other. This is zeroth law of thermodynamics, and ये डायग्राम हम बना के आएंगे एग्जाम में, important. Now next what we have to discuss, concept of temperature. Zeroth law establishes the concept of temperature and provides a basis for temperature measurement in comparison. Using zeroth law, we can define temperature. We can define temperature as a property that determines whether two systems are in thermal equilibrium or not when brought in contact. जब हम दो सिस्टम्स या दो से ज्यादा सिस्टम्स को आपस में कांटेक्ट में लाए, तब हम टेम्परेचर को यूजिंग जीरोथ लॉ कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये वो प्रॉपर्टी है जो डिटरमाइन करे वेदर कि जो सिस्टम्स हमने इन कांटेक्ट लाए हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं या नहीं है, ये सेम टेम्परेचर पे हैं या नहीं है। वो किससे हम पता लगा सकते हैं? वो टेम्परेचर से पता लगा सकते हैं। जब दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे, जब दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तब क्या होगा? तब there will be no net exchange of heat between these systems and they will have the same temperature. In practical manners, टेम्परेचर को हम ऑफन मेजर करते हैं एक थर्मोमीटर की हेल्प से। थर्मोमीटर एक्चुअली क्या होता है, उसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरह से थर्मोमीटर होता है, वो अंदर इसके मरकरी भरा होता है और यहाँ से रीडिंग्स होती है इसकी 10 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री एंड सो ऑन, ऐसे ही होता है। तो जो ये थर्मोमीटर होता है, इट इज एक्चुअली सिस्टम that responds to the changes in thermal equilibrium. जब इसको किसी सिस्टम के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो ये सिस्टम जो ये थर्मोमीटर है, जब हम इसको किसी सिस्टम के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, चाहे हम अपना टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं या किसी और चीज का, वाटर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो ये रेस्पॉन्स करता है बाय एक्सपेंडिंग और कंट्रैक्टिंग इन ए प्रिडिक्टेबल मैनर। जो इसके अंदर मरकरी भरा होता है वो एक्सपैंड या कंट्रैक्ट होता है जब इसको
किसी सिस्टम के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है और बाहर में जो उसकी रीडिंग्स होती है, द रीडिंग्स ऑफ द थर्मोमीटर प्रोवाइड्स अ न्यूमेरिकल स्केल फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, सच एज इसमें डिग्री सेल्सियस में होगा या फ़ारेनहाइट में होगा या केल्विन में होगा। तो वो तो एक रीडिंग प्रोवाइड करता है हमारे पास, लेकिन एक्चुअली है तो ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ही जो रेस्पॉन्ड करता है बाय ईदर कंट्रैक्टिंग और रेस्पॉन्डिंग इन ए प्रेडिक्टेबल मैनर। जब हम इसको किसी सिस्टम के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो या तो ये कंट्रैक्ट होगा या तो ये सिकुड़ेगा या तो एक्सपैंड होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एक्सपैंड होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो कंट्रैक्ट होगा। So it is actually a thermodynamic system. That is how we can introduce the concept of temperature using zeroth law of thermodynamics. तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 of thermal physics, in which we will discuss the first law of thermodynamics, limitations of first law of thermodynamics, and also we will discuss how heat is converted into work.